Start chapter solution. Solution. It is a homogeneous mixture of two or more components whose composition varies up to certain limits. Solution with 2, 3 and 4 components are called binary, ternary and quaternary solution respectively. Solute plus solvent is equals to solution. Solute को हम B से डिनोट करेंगे और solvent को A से. Okay. Case first, when two components are mixed, then that component whose physical state remains unchanged after mixing is solvent. जैसे सुगर प्लस वाटर लिए, सुगर ये सॉलिड है और वाटर H2O ये लिक्विड है और बाद में सॉल्यूशन बना ये लिक्विड स्टेट में. ओके. केस 2, if the physical state of both the components are same, then that component whose mass percent is more is solvent. Okay. Case 3, if the mass percent as well as physical state of both the components are same, then that component whose mole fraction is more is solvent. Okay. On the basis of physical state of a solvent, solutions are classified as a solid solution. Physical state of final solution is solid. जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड ऐड किए हैं और सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड है तो एलॉय बना. यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट solid, then NaHG sodium amalgam. Okay. Solute है gas, solvent solid. यहाँ पे H2 adsorb on the surface of PD palladium. Okay. Liquid solution. Physical state of final solution is liquid. Solute plus solvent is equals to solution. Solute यहाँ पे solid ले रहे हैं और solvent liquid है, जैसे for example salt solution, sugar solution etc. Solute भी liquid है, solvent भी liquid है, तो alcohol plus water. Okay. Solute gas है, solvent liquid है, for example aerated drinks, O2 plus H2O carbonated drinks. Okay. Gaseous solution physical state of final solution is gaseous. Solute plus solvent is equals to solution. Solute plus solvent is equals to solution. तो यहाँ पे सॉल्यूट है सॉलिड, सॉल्वेंट है गैस, तो सॉल्यूशन जो बना वो कैम्फर, I2, नैप्थलीन प्लस एयर. सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड है यहाँ पे सॉल्यूट, हाँ, और बहुत सारा मतलब सॉल्वेंट जो है जब मोर अमाउंट में है वो गैस है. कैम्फर, I2, नैप्थलीन, एयर. ओके. लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है. ह्यूमिडिटी CHCl3 प्लस N2. गैस प्लस गैस O2 प्लस N2. ओके. concentration already done in chapter 1st, mole concept. Okay. Solubility of solid in liquid, solubility of gas in liquid, इसमें हेनरी लॉ हम लोग पढ़ते हैं. solubility of liquid in liquid, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे इसमें. आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल एजियोट्रोप. ओके. solubility of solid in liquid, फॉर एग्जाम्पल 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किए 1 ग्लास ऑफ वाटर में. ओके. maximum amount of solute that can be added in a particular amount of solvent at a particular temperature. Maximum amount of solute that can be added in a particular amount of solvent at a particular temperature, known as solubility. Solubility can be measured in gram per liter, mole per liter, gram per 100 gram of solvent. Okay. Solution, unsaturated solution, saturated solution or supersaturated solution. Unsaturated solution, more solute can be added in a particular amount of solvent at a given or fixed temperature. जैसे भाई सिर्फ 1 स्पून ऑफ शुगर डाले हैं 1 गिलास पानी में, तो उसमें भी और ऐड किया जा सकता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, no more solute can be added in a particular amount of solvent at given temperature. Saturated solution, no more solute can be added
in a particular amount of solvent at a given temperature. 1 ग्लास ऑफ वाटर में 3 स्पून तो अब ये सैचुरेट हो चुका है, अब इसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते. No more solute can be added in a particular amount of solvent at a given temperature. अब super saturated solution, more solute can be added in a particular solvent at high temperature. जैसे चाशनी बनाते टाइम. Yes. Solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. Solid plus liquid. Solid यहाँ पे solute और liquid solvent है. इनसे मिलकर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बना. ठीक है. solubility of solid in liquid can be defined as the amount of solid in grams or mole added in 100 gram of a particular solvent at a given temperature. Solubility of solid in liquid can be measured in gram per liter, mole per liter or gram per 100 gram of solvent. Factors affecting solubility of solid in liquid. Factors affecting solubility of solid in liquid. Nature of solute and solvent. Like dissolves, like polar solvent dissolves polar solute. जैसे H2O dissolve in NaCl KCl. ये polar solvent. Mu is not equals to 0. Okay. Non-polar solvent dissolves in non-polar solute जैसे benzene CCl4 dissolves CS2Br2. Okay. Temperature solute plus solvent से यहाँ solution बना. ठीक है. solute ये solid है, solvent liquid और solution लास्ट में ये liquid. तो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव. पहले यहाँ पे सॉलिड ये सॉलिड में था बट अब सब पूरा लिक्विड हो चुका है. पहले सॉलिड था, रैंडमनेस कम था, बट अब सॉल्यूशन लिक्विड हो गया, रैंडमनेस इंक्रीज हो गया. ओके. और एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस. ठीक है. डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंक्रीज हो रहा. डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज हो रहा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो रहा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अभी अनसैचुरेटेड बन चुका है. एग्जांपल NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 एट्सेट्रा. ऐसे भी एंडोथर्मिक जो है वो जब टेम्परेचर देते हैं तो वो रिएक्शन करता तो होता है. टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन करे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी इंक्रीज हो रहा. ठीक है. एग्जांपल NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 एट्सेट्रा. डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज हो रहा ड्यू टू ली चैटेरियर प्रिंसिपल. ठीक है. यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है. एग्जांपल Li2CO3, Li2CO3, Na2CO3 डॉट NH2O CS2SO3. इसका एक ट्रिक है स्कूल. SCHOOL. S से हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट NH2O. C से हो गया CS2SO4 CS2SO4. L से हो गया Li2CO3. Okay. There are some solids whose solubility in liquid may increase or decrease with temperature. For example, Na2SO4 dot NH2, Na2SO4 dot NH2 जिसे ग्लोबर्स साल्ट भी बोलते हैं. Na2SO4 dot NH2, CaCl2 dot 6H2O, CaCl2 dot 6H2O, alpha NH4NO3, beta NH4NO3, CaCl2 dot 4H2O, CaCl2 dot 2H2O. हाँ. सॉल्युबिलिटी और इधर टेम्परेचर है. Na2SO4 डॉट 10H2O. ये यहाँ से जब डेल्टा एच जब हीट करना स्टार्ट किया तो डेल्टा एच पहले पॉजिटिव था, फिर वहाँ तक पहुँचा 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है. इसके बाद ये फिर डिक्रीज़ होने लगता है क्योंकि इसके बाद सारा वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो चुका है एंड देन Na2SO4 सिर्फ बचा और अब ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है. तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये रिएक्शन डिक्रीज़ होने लगता है. ओके. और इस टेम्परेचर को यहाँ पे कहते हैं 32.4 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर इसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. ओके. फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकेंड हो गया टेम्परेचर. थर्ड
bonding or complex formation. Solubility of Ki in water increases by adding iodine due to कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन Ki प्लस I2 Ki3 हो जाता है, ठीक है. सॉलिबिलिटी ऑफ Ki इन वाटर, सॉलिबिलिटी ऑफ Ki इन वाटर इंक्रीजेज बाय एडिंग आयोडीन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन Ki प्लस I2, यहाँ Ki3 बन जाता है. Ki का एक और रिएक्शन है 2Ki प्लस Hgi2, 2Ki प्लस Hgi2 से यहाँ पे K2Hgi4, ये ब्रैकेट में Hgi4 है. फिर इसके बाद जब इसमें पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, तो 2K प्लस प्लस 1 Hgi4 2 माइनस. ओके. Effect of pressure, there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid. Effect of pressure, there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid, ठीक है. Solubility of liquid in a gas, solubility of gas in a liquid. Solubility of gas in liquid can be defined as maximum amount of gas dissolved in fixed amount of liquid. Maximum amount of gas dissolved in a fixed amount of liquid. Gas plus liquid, gas solute है CO2 प्लस यहाँ पे लिक्विड है सॉल्वेंट H2O. सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एक्वस CO2, यहाँ पे एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव. यहाँ पे इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा क्योंकि पहले ये गैस था और अब लिक्विड हो गया, तो रेंडमनेस कम हो गया, डेट्स वाई इंट्रोपी डिक्रीज हो गया. और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए डेल्टा H नेगेटिव. Solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is measured accurately in the form of mole fraction. Factors affecting solubility of gases in liquid. Nature of gas and liquid. Like dissolve like जैसे NH3 plus H2O, NH4 plus plus OH minus intermolecular hydrogen bonding, ये बनाया NH3 plus H2O. NH3 ये गैस है, NH3 अमोनिया गैस है, H2O ये लिक्विड है. जब इसमें मिक्स किया गया तो NH4 plus और OH माइनस, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी हाई है. HCl प्लस H2O, HCl गैस था, H2O लिक्विड है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये भी हाईली सॉल्युबल है. If gas solute forms bond with the liquid solvent, then solubility of gas in liquid increases. A increase करने पर intermolecular force of attraction increase हो रहा, E increase करने पर intermolecular force of attraction increase हो रहा, TC critical temperature increase हो रहा. Easy to liquefy solubility of gas in liquid increase, जिसका A ज़्यादा है, ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, TC क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया, ईजी तो लिक्विफाई, ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, ठीक है. CO2 गैस इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स हैविंग TC 30 डिग्री सेल्सियस. CO2 गैस is used in cold drinks having TC approx 30 degree Celsius. Okay, effect of temperature. गैस प्लस लिक्विड से सॉल्यूशन बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डिक्रीजेस. गैस प्लस लिक्विड से मिलके जो सॉल्यूशन बना, ये तो एक्सोथर्मिक था, ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव. टेम्परेचर अब ये एक्सोथर्मिक है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये डिक्रीज हो रहा, ठीक है. एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड H2O. aquatic species are more comfortable in cold H2O because solubility of O2 in gas is inversely proportional to temperature. ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे हम लोग यहीं पे देख रहे हैं, गैस को जब लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया और जब ये सॉल्यूशन बना तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये बैकवर्ड ये डायरेक्शन में मूव कर रहा, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज़ हो रहा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, क्योंकि नेचर में मेनली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन
होता है, तो इसलिए solubility of gas and liquid is inversely proportional to temperature. That's why aquatic species are more comfortable in cold H2O, because solubility of O2 in H2O is inversely proportional to temperature, because solubility of O2 in H2O is inversely proportional to temperature. CO2 cold CO2 कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स किया जाता है, इसका एज आता है और क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है। N2 को नहीं किया जाता कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स, क्यों? क्योंकि इसका ए कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम है। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये हम लोग हेनरी लॉ से समझते हैं। हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. At constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to the at constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. तो S is directly proportional to P, ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए, तो S is equals to के पी, के यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? हेनरी कांस्टेंट। फिर इसका मॉडिफाइड वर्जन आया, मॉडिफाइड हेनरी लॉ, modified by Dalton. Solubility of gas in liquid is measured in terms of mole fraction. Partial pressure of gas over liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. Partial pressure of gas over liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. Px is directly proportional to chi x. Px is equals to kh into chi x. Kh depends upon nature of gas. Kh depends upon nature of gas, solvent and temperature, और kh directly proportional है temperature के, ठीक है। kh depends upon nature of gas, solvent and temperature. Px is equals to kh into chi x. P is equals to kh into chi. Px is equals to kh into chi x. Px is equals to kh into chi x. Unit of kh, atm per liter. Solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over liquid. Chi gas in liquid 1 upon kh, inversely proportional to Henry constant 1 upon kh. Solubility of gas in liquid 1 upon kh, और फिर inversely proportional to temperature 1 upon temperature. पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है केएच और टेम्परेचर के, ठीक है। लिमिटेशंस हेनरी लॉ is not applicable for those gases which undergo association and dissociation with the solvent. जैसे Pa is equals to KH into Ka, ये यूज़ करते हैं जब गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं एट सर्टन प्रेशर, एंड डाल्टन्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब गैस नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए एट रूम टेम्परेचर। Pa is equals to Ka into Pt। जैसे O2 और यहाँ पे हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना NH3 और H2O, यहाँ पे NH4OH, CO2 और H2O, H2CO3, SO3 plus H2O, H2SO4। यहाँ पे Henry law is not applicable for those gases which react without giving any pressure. Henry law is applicable for example SO2, 4 ऑप्शन है, SO2, H2, NH3 all H2, which have maximum value of KH in H2O at 298 Kelvin. हीलियम 4 ऑप्शन है, हीलियम, आर्गन, SO2, NH3। जिसका ए कम होगा वो लिस्ट सॉल्यूबल होगा, तो KH उसका ज़्यादा होगा, और पूछा क्या है? मैक्सिमम KH, तो हीलियम ये लिस्ट सॉल्यूबल है। ओके, अब अगर ग्राफ है पी पार्शियल प्रेशर और काय के बीच में, विच आर मोर सॉल्यूबल, X2 या XA।
नेक्स्ट, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा और उसका KH कम होगा. Application of Henry law to increase the solubility of CO2 in soft water and soda water. The bottle is sealed under high pressure. Application of Henry law to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water. The bottle is sealed under high pressure. Okay. At second point, at higher altitude, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This led to low concentration of at the higher altitude. At the higher altitude, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. ठीक है. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude. Low blood oxygen causes symptoms of anoxia. Low blood oxygen causes symptoms of anoxia. Unable to understand and think. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at higher level. तो यहाँ पे low blood oxygen cause symptoms anoxia. Okay. To avoid bends in scuba diver, air is diluted with helium. Once again, see the application of Henry law. First, application of Henry law. First, in deep sea diving, as sea divers go inside sea, pressure increases, solubility of O2 and N2 increases. When sea divers come out, pressure decreases, solubility decreases. Therefore, N2 comes out and causes pain known as bend. To avoid bends, helium is also added in cylinders as the helium dissolved less. It will come out in less quantity when sea divers comes out. That's why painless. In function of lungs, in lungs, PO2 is very high. It forms oxyhemoglobin, but in tissue PO2 is low, PO2 is low. Therefore, O2 is released. Okay. Third, for people living at high altitude, atmospheric pressure decreases. PO2, partial pressure of oxygen decreases. Less oxygen is available for breathing, which causes anoxia. Mountains carry oxygen cylinder with them. Fourth, soft drinks sealed at high pressure. Carbon dioxide dissolve. Open करने में pressure decrease करता है, so bubbles of carbon dioxide comes out, solubility decreases. Okay. The solubility of gases in liquid increases with increase in pressure and decreases with decrease in temperature. The solubility of gases in liquid increase with increase in pressure and decrease in temperature. Okay. Limitations of Henry law. Gas reacts with solvent. HCl plus H2O, H plus Cl minus, NH3 plus H2O, NH4 plus OH minus, SO2 plus H2O, H2SO3, SO3 plus H2O, H2SO4. Example: HCl, SO2, SO3, NH3. They do not obey Henry law because they are react. Okay. प्रेशर इज़ टू हाई, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा उस टाइम भी हेनरी लॉ हम लोग नहीं यूज़ कर सकते. प्रेशर इज़ टू हाई. एंड थर्ड नंबर, टेम्परेचर इज़ टू लो. अगर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम है तो उस टाइम भी नहीं यूज़ कर सकते हेनरी लॉ. प्रेशर इज़ टू हाई, टेम्परेचर इज़ टू लो. When gases dissociate and associate in solvent, उस टाइम भी नहीं. Effect of pressure, Henry law. Solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gases. तो ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एंड मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मास इक्वल्स टू, तो जब प्रोपोर्शन हटा तो मास इक्वल्स टू के पी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना, एम और पी के बीच में ये स्ट्रेट लाइन। ओके, एम इक्वल्स टू के पी लॉग एम इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग पी, लॉग एम, ये वाई हो गया, वाई एक्सिस पे लॉग एम, ओके, एक्स एक्सिस पे लॉग पी, और ये एम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है, स्लोप 1 है, और फिर सी लॉग के ऑन द बेस 10, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो ये एम ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, तो एम ए इक्वल्स टू के इंटू पी ए, एम ए इक्वल्स टू के इंटू पी ए, और पी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू एम ए, 1 अपॉन के एच के बराबर है, हेनरी कॉन्स्टेंट, पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू एम ए इक्वल्स टू, या तो ये भी लिख सकते हैं, और या फिर ये हम लोग 2 टर्म में लिख सकते हैं, एम ए इक्वल्स टू के एच इंटू पी ए, एम ए इक्वल्स टू के एच इंटू पी ए, तो फिर यहाँ पे हो गया के एच इक्वल्स टू एम ए अपॉन पी ए, तो ये ग्राम पर एटमॉस्फेरिक, ग्राम पर एटीएम में अगर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू एम ए, मतलब के एच इक्वल्स टू पी ए अपॉन एम ए, तब यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन में के एच का यूनिट एटीएम पर ग्राम होगा। का ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, का ए इक्वल्स टू के एच इंटू पी ए, तो यहाँ पे के एच इक्वल्स टू का ए अपॉन पी ए हो गया, तो यहाँ पे के एच का यूनिट अगर एटीएम इन्वर्स है, बार इन्वर्स और पास्कल इन्वर्स है, देन यूज दैट फार्मूला इफ़, और दूसरा फार्मूला है पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू का ए, मतलब के एच इक्वल्स टू पी ए अपॉन का ए, जब के एच का यूनिट एटीएम है या बार है या पी है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, मोलरिटी एस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, एस ए इक्वल्स टू के एच इंटू पी ए, के एच बराबर एस ए अपॉन पी ए, तो यहाँ पे के एच का यूनिट मोल लीटर इन्वर्स एटीएम इन्वर्स, पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू एस ए, के एच बराबर पी ए अपॉन एस ए, लीटर मोल इन लीटर सॉरी एटीएम लीटर मोल इन्वर्स। ओके, characteristic of Henry constant, characteristics of Henry constant kh depend upon nature of gas, kh depend upon temperature, kh is inversely proportional to solubility of gases। एक क्वेश्चन है, low concentration of O2 in blood and tissue of people living at high altitude is due to low atmospheric pressure। okay, factors affecting vapor pressure, factors affecting vapor pressure, nature of liquid, temperature mainly, addition of non-volatile solute, urea, glucose, fructose, factors affecting vapor pressure, nature of liquid, temperature, और mainly जो ये temperature पे ही depend करता, factors affecting vapor pressure, nature of liquid, temperature, addition of non-volatile solute, factors affecting vapor pressure, temperature mainly। okay, R is equals to 8.314, R is equals to 8.314 joule, Kelvin inverse, mole inverse is equals to 25/3 joule, Kelvin inverse, mole inverse, और यहाँ पे डेल्टा एच वी वेपोराइजेशन, जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इन जूल पर मोल, P इक्वल्स टू के ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, P इक्वल्स टू के ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, मतलब ये P डिनोट कर रहा है Y को, Y इक्वल्स टू ई टू द पावर -1 अपॉन एक्स, तो फिर Y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, और फिर ये ग्राफ बन रहा, ये धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज़ हो रहा। ओके, जैसे ग्रोथ ऑफ ई बनता था ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जैसा ग्राफ बनता था, लाइक वैसा ही। P इक्वल्स टू के टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, टेकिंग ln natural log both sides, ln P इक्वल्स टू log k प्लस log E,
to the power minus delta H upon RT. Log P is equals to log K minus delta H upon RT. Y is equals to C plus mx. तो यहाँ पे y एक्सिस पे ln P एंड x एक्सिस पे 1 अपॉन टी. तो इसका ये m हो गया. स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और c ये इंटरसेप्ट ये ln k रिप्रेजेंट कर रहा. ओके जैसे 1 अपॉन ये लॉग p और 1 अपॉन टी के बीच का था. ठीक है. ln p1 इक्वल्स टू सीधा फॉर्मूला पे आता है ln p2 अपॉन p1. ln p2 अपॉन p1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2. क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. ln p2 upon p1 ln p2 upon p1 is equals to delta h upon r into 1 upon t1 minus 1 upon t2. Log base 10 p2 upon p1 is equals to delta h upon 2.303 into r into 1 upon t1 minus 1 upon t2. Log p2 upon p1 on the base 10 log p2 upon p1 on the base 10 is equals to delta h upon 2.303 r into 1 upon t1 minus 1 upon t2. ln p is equals to ln k minus delta h upon rt. Why pressure cooker reduces cooking time? On putting the lid of a pressure cooker, boiling point increases due to weight of lid of cooker. Heat will distributed evenly, therefore cooking is faster. Okay. और इवापोरेशन विल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया पे सिर्फ और सिर्फ इवापोरेशन डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर ये मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर. ओके. सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. रॉल्ड्स लॉ जैसे इथेनॉल प्लस वाटर. A vapor pressure exerted by the vapor of liquid over the surface of liquid at equilibrium. Pressure exerted by the vapor of liquid over the surface of liquid at equilibrium. Rate of vaporization is equals to rate of condensation. Vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction between solute and solvent. वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर देंगे सारा वेपर ऊपर उठ जाएगा. ओके. बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Boiling point is directly proportional to atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid is inversely proportional to boiling point of liquid. Vapor pressure of liquid is inversely proportional to boiling point of liquid. Raoult's law in liquid solution. जैसे इथेनॉल है और वाटर. इथेनॉल सॉल्यूट है तो इसे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड H2O वाटर ये सॉल्वेंट है तो इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए, सॉरी पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी का ए बी, और पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए. देन यहाँ पे इन दोनों के मिक्सर से सॉल्यूशन बन रहा. देन पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये लिक्विड फेज में और ऊपर में ये वेपर फेज में. ओके. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और ये लिक्विड फेज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऑफ component into partial vapor pressure of component in its pure state. जैसे पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए. पी ए और का ए के बीच में अगर ग्राफ ही बने तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप बन रहा है, और यहाँ पे स्लोप जो है ये पी नॉट ए है. ठीक है. पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी का ए बी. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. ठीक है. तो यहाँ पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का ए बी. तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस का ए बी लिख सकते हैं का ए को, प्लस पी नॉट बी का ए बी. पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए का ए बी प्लस पी नॉट बी का ए बी. पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस का ए बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. ओके. और अगर वेपर फेज में लिखना पड़े तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, इसे वाई से डिनोट करते हैं. तो वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी, वाई बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी टी. वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए अपॉन पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का ए बी. वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट बी का ए बी अपॉन पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का ए बी.
YA plus YB is equals to 1. Okay. Raoult's law is applicable only for completely miscible liquids. Raoult's law is applicable only for completely miscible liquids. According to Raoult's law, PA is equals to P naught A chi A, PB is equals to P naught B chi B, और PT is equals to PA plus PB, P naught A chi A plus P naught B chi B. इधर लिक्विड फेज हो गया और इधर वेपर फेज. आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं. आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ट्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होगा और पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए काई और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी होगा. और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन बराबर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन. ओके. Delta H mixing 0, delta V mixing 0, delta U is equals to 0 internal energy, delta P is equals to 0. Delta P means P observed minus P calculated. P observed मतलब observed from graph और P calculated मतलब calculated from Raoult's law. 0 हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस. डेल्टा S ग्रेटर देन 0 देखिए पॉजिटिव होगा. डेल्टा S ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव. और डेल्टा Z ये नेगेटिव और लेस दैन 0. नेगेटिव और लेस दैन 0 कुछ भी कह लो. फॉर्म्स जियोट्रॉप. एग्जाम्पल एन हेप्टेन और एन हेक्सेन. और या फिर सेकेंड बेंजीन प्लस टॉलिन. ओके. होमोलोगस इसमें होमोलोगस इसका रहता है. यस. इथाइल ब्रोमाइड प्लस प्रोपाइल ब्रोमाइड. क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. ओके. इसका ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन जैसा है. ठीक है. इधर है वेपर प्रेशर पी ए, इधर है काय, फिर इधर है पी बी का. यहाँ से यहाँ पे काय ए 0 है तो यहाँ पे काय बी 1 होगा. तो काय ए 0 है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक आ गया. फिर यहाँ पे काय ए 1 हो गया और इधर काय बी 0 है तो काय बी 0 इधर से यहाँ तक पहुँचा. फिर इन दोनों के बीच का जब लाइन मैच करते हैं तो उसे कहते हैं पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. ठीक है. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए, पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी का बी, पी एस इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल्स टू सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन. ओके. Delta H mixing is not equals to 0. Delta V mixing is not equals to 0. Delta U internal energy is not equals to 0. Delta S entropy इक्वल्स टू, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा. तो डेल्टा एस पॉजिटिव और कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 ये हमेशा. और फिर डेल्टा जी ये नेगेटिव होगा और लेस देन 0. डेट्स वाई सो स्पॉन्टेनियस. तो ये भी हमेशा नेगेटिव ही होता है. ठीक है. फॉर्म्स एजियोट्रॉप. अब पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. और मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो, एक हो गया सोइंग पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा सोइंग नेगेटिव डेविएशन. सोइंग पॉजिटिव डेविएशन ए बी के बीच का इंट्रैक्शन ये कम है ए और बी के बीच के इंट्रैक्शन से. ए बी का जो इंट्रैक्शन है ये कम है ए और बी के इंट्रैक्शन से. तो ये कम है, इंट्रैक्शन कम है तो ज़्यादा वेपर बन के आराम से उड़ सकता है. और इसका जब कम है तो ये थोड़ा फैल गया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, इसलिए कहा भी गया पॉजिटिव डेविएशन है. क्योंकि यहाँ पे मोर वेपर प्रेशर बना, जब लेस इंट्रैक्शन है तो सब वेपराइज आराम से हो पा रहा, इसलिए मोर वेपर बन रहा. तो यहाँ पे पी एस ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी, पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए का ए, पी बी ग्रेटर दैन पी नॉट बी का बी. ठीक है. और यहाँ पे डेल्टा पी भी पॉजिटिव है. डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0. डेट्स व्हाई नॉन एज एंडोथर्मिक. ओके. डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी ये नेगेटिव और लेस देन 0. डेट्स व्हाई नॉन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इधर हो गया वेपर प्रेशर और इधर काय. तो ये इन ग्राफ से हल्का सा बस ऊपर उठा हुआ. एग्जाम्पल सबसे पहला एसीटोन प्लस अल्कोहल या फिर एनी अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल चलेगा. एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, और वाटर प्लस बेंजीन.
वाटर प्लस बेंजीन, इनको एसीटोन के साथ ए बी सी, एसीटोन ए से हो गया अल्कोहल, एसीटोन प्लस अल्कोहल, एसीटोन प्लस बी, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस सी के साथ सी से हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, अब वाटर प्लस अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, CCl4 प्लस CaCl3। ओके, अब देखते हैं शोइंग नेगेटिव डेविएशन। शोइंग नेगेटिव डेविएशन मतलब ए बी का इंट्रैक्शन ये ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। तब इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब लेस वेपर बन रहा, ऊपर में वेपर कम बन रहा, क्योंकि इन सब लोगों के बीच में इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम हो चुका है। तो PS लेस दैन PA प्लस PB, PA लेस दैन P0 का A, PB लेस दैन P0 B का B, डेल्टा H मिक्सिंग लेस दैन 0 तो कहेंगे ये एक्सोथर्मिक। ओके, डेल्टा V मिक्सिंग लेस दैन 0, डेल्टा P ये भी नेगेटिव है, डेल्टा S ये पॉजिटिव हो गया और डेल्टा G ये नेगेटिव, ये तो हमेशा रहेगा। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये ज़्यादा होता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखें तो FON की वजह से जब अट्रैक्शन हो रहा हो तो कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किसी और की वजह से हो रहा तो कहेंगे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। और इसका ग्राफ जो है वो आइडियल वाले से थोड़ा हल्का सा नीचे के तरफ कर्व होगा। ओके, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल तीन तरह है। सबसे पहला हो गया एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, एसिड और बेस, और फिर तीसरा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है, तो यहाँ पे एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, तो क्या एसिड प्लस H2O। सेकेंड एसिड बेस, एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH और प्लस पायरिडीन, ये बेस हो गया पायरिडीन। फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, एसिड और बेस में अगर देखें तो। ठीक है, फिर फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, एनिलीन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा, बेस ले लिए, पायरिडीन में भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा, ये भी बेस हो गया। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CHCl3 प्लस CH3COCH3। ओके, एजियोट्रॉप, a mixture of two liquid which behaves like single liquid and boils at fixed temperature, and boils at fixed temperature. Azeotrope mixture can't be separated by steam distillation or frictional distillation. They are only separated by azeotropic distillation. A plus B, boiling point is equals to 80 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा सॉल्यूशन बी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। जब इन दोनों को मिक्स किया तो फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स किया, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और ही हो गया। ठीक है, देयर रेशियो इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम, देयर रेशियो इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम। एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation can show minimum boiling point, boiling point of azeotropes is less than the boiling point of either component. Boiling point of azeotrope is less than the boiling point of either component, that's why known as minimum boiling azeotrope. इसमें कौन सा शो कर रहा, जिसका जैसे कम था, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा, मतलब उसके बीच का इंट्रैक्शन कम था, तो बस हल्का सा टेम्परेचर दिया वो बॉयल होगा, तो मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एग्जांपल इसका सारा हो जाएगा जो पॉजिटिव डेविएशन का है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। 95.4% इथेनॉल, 95.4% इथेनॉल प्लस 4.6% H2O, 95.4% इथेनॉल प्लस 4.6% H2O बाय मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस।
तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है 351.15 केल्विन, 351.15 केल्विन। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप non-ideal solution showing negative deviation from ideal behavior, non-ideal solution showing negative deviation मतलब उस सब के बीच का जो इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा बॉयल करने के लिए, डेट्स वाई नोन इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल behavior can show maximum boiling azeotrope. Boiling point of azeotrope is greater than that the boiling point of either compound. ओके, ए बी के बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए और बी बी से। ठीक है, H2O प्लस HNO3 वगैरह सब सारा एग्जाम्पल उसी का होगा नेगेटिव डेविएशन वालों का। ठीक है, 68% HNO3, 68% HNO3 मिक्स विथ 32% H2O, मिक्सड विथ 32% H2O। और फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 359 केल्विन, 359 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O 373 केल्विन। और मिक्सचर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 393.5 केल्विन। देखो जो मैक्सिमम वाला है उसका 393.5 केल्विन हो गया, और जो मिनिमम वाला है उसका 351.15 केल्विन। ओके, अब पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ substance or number of particles and independent of nature of particle। जैसे लाइक ट्रेन और बस में जो हम लोग टिकट खरीदते हैं तो उसमें क्या इंसान को देख के देता है कि ये मोटा है इसका पैसा ज़्यादा लेंगे, ये पतला है इसका पैसा कम लेंगे। नो, वहाँ पे पर्सन के हिसाब से लेता है, जितने पर्सन का सीट चाहिए नंबर ऑफ पर्सन काउंट करता है उतना नंबर ऑफ टिकट दे देता है। वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। ओके, इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी is added in a volatile solvent, vapor pressure of solution decreases, boiling point increases, freezing point decreases. Change in all this colligative property depends upon number of particle. Okay, colligative property gives best result when a solute does not react with solvent, solute does not react with solvent, solute should be non-volatile, solute should be non-volatile, solution should be a dilute है मतलब यहाँ पे molarity is equals to molality. Okay, solute should neither dissociate or associate in solution. Vent-Hoff factor I, calculation of number of particles, I is equals to observed colligative property upon calculated colligative property. देखो OCP अपॉन CCP, OP, अभी OP बहुत ज़्यादा फेमस चला हुआ है तो OCP अपॉन CCP, तो OP पहले आएगा तो OP ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, फिर उसके बाद एक और फार्मूला है आई का, I इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड कहते हैं नॉर्मल वालों को, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड मतलब क्या, कैलकुलेशन ड्यूरिंग डेल्टा टीबी डेल्टा पी वगैरह से जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व्ड में लेते हैं, जो कि एबनॉर्मल है अगर एबनॉर्मल लिए हैं तो, और जब एक्यूरेट है तो वो लेंगे कैलकुलेटेड मोलर मास। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर सॉल्यूशन और आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, अरे यार सॉरी, I is equals to number of particles formed after association or dissociation, number of particles formed after association or dissociation upon initial number of particles, number of particles formed after association or dissociation upon initial number of particles, ठीक है। I क्या है, Vent-Hoff फैक्टर, Vent-Hoff फैक्टर ये सिर्फ सॉल्यूट के लिए डिफ़ाइन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट 2 तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए I इक्वल्स टू 1 लेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
सुक्रोज कुछ भी रहे, सबके लिए I1 लेंगे। यूरिया हो गया NH2CuNH2, इसके लिए भी I1 लेंगे, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसके लिए I इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 100%, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फ़ा इक्वल्स टू 100%, I इक्वल्स टू n फॉर डिसोसिएशन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसलिए अल्फ़ा 100% लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे इसका अल्फ़ा 100% है, क्योंकि ये सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है, डेट्स वाई। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 100%, तो I इक्वल्स टू n लेंगे यहाँ पे फॉर डिसोसिएशन। n के रिप्रेजेंट करना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट और डिसोसिएट, और I इक्वल्स टू 1/n लेंगे फॉर एसोसिएशन। आगे चल के जुड़ गया, तो ऐसे याद कर लो, आगे चल के वो लोग जुड़ रहा है, एसोसिएट हो रहा है मतलब जुड़ गया, तो 1 से कम हो जाएगा तो I इक्वल्स टू 1/n, और I इक्वल्स टू n फॉर डिसोसिएशन। आगे डिसोसिएट हुआ ज़्यादा हो गया तो I इक्वल्स टू n। ठीक है, अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 100%। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये सब आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जैसे H2SO4 ये आगे चल के ब्रेक हो गया 2H++ SO4 2-, और HCl ये ब्रेक हुआ H++ Cl- में, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू 100% है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH ये डिसोसिएट हो रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे CH3CO- प्लस H+ और NH4OH ये NH4+ और OH- इक्विलिब्रियम पे, तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 100%। ओके, और वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसको कंसिडर करेंगे, और वीक एसिड के लिए हम लोग हमेशा n इक्वल्स टू 2 लेते हैं। ठीक है, AlCl3 Al3+ 3Cl- तो N4 हो गया, Na2SO4 2Na+ SO4 2-, यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 हो गया। AXBY XAY+ YBX-, इस फॉर्म में से तोड़ते हैं। K4 FeCN6, तो यहाँ पे 4K++ FeCN6 4-, यहाँ पे 5 हो गया टोटल। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 100%। मेथड 1 I जो है ये सॉल्यूट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एसोसिएट या फिर डिसोसिएट कर रहा है। अगर एसोसिएट हो रहा है तो I लेस देन 1, अल्फ़ा लेस देन 1, और डिसोसिएशन में I ग्रेटर देन 1। ओके, I इक्वल्स टू 1 - अल्फ़ा इंटू 1 - 1/n, I इक्वल्स टू 1 - अल्फ़ा इंटू 1 - 1/n। एसोसिएशन का है ये, एसोसिएशन का I इक्वल्स टू 1 - अल्फ़ा इंटू 1 - 1/n, 1 - अल्फ़ा इंटू 1 - 1/n, ये एसोसिएशन का है। I लेस देन 1, अल्फ़ा लेस देन 1। ओके, और डिसोसिएशन में I इक्वल्स टू 1 + अल्फ़ा इंटू n - 1, I इक्वल्स टू 1 + अल्फ़ा इंटू n - 1, ये डिसोसिएशन का है, ये डिसोसिएशन का, और यहाँ पे I ग्रेटर देन 1 है। ओके, और एसोसिएशन में I लेस देन 1। एसोसिएशन का कुछ एग्जांपल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, जैसे हेक्सेन बेंजीन टॉलिन CCl4 CS2। ओके, n का नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेट एसोसिएट एंड फॉर्म 1 पार्टिकल्स, और इधर डिसोसिएशन वाले में n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 10 आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 पार्टिकल। ओके, मेथड 2 टोटल क्या है? टोटल 100% हम लोग मानते हैं, तो क्वेश्चन में अगर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कुछ गिवन है, कितना भी परसेंट है, तो फिर एसोसिएशन वाले में क्या करेंगे? परसेंट इंटू 1/n, और डिसोसिएशन वालों को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट इंटू n। ठीक है, अब जो लेफ़्ट परसेंटेज बच गया तो परसेंटेज लेफ़्ट वो लिख देंगे। ठीक है, जिसका I फाइंड आउट करना है उनका सम करके अपॉन 100 कर देंगे। जैसे AlCl3 डिसोसिएट 20%, जैसे AlCl3 डिसोसिएट 20%, तो फिर यहाँ पे टोटल 100% अगर माने तो 20% डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट में इंटू n करते हैं, और AlCl3 ये डिसोसिएट होता है Al3+ Cl-, तो n इक्वल्स टू 4 हो गया, तो 20 × 4, और फिर यहाँ पे रेस्ट कितना बचा? 80, तो 20 × 4 80 + 80/100, तो ये हो गया 1.6। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एसिटिक एसिड अंडरगो 40% डिसोसिएशन एंड 20% एसोसिएशन, और जब 40 ये हो गया 20 का बचा कितना लेफ्ट? 40% बच गया लेफ्ट,
तो फिर यहाँ पे एसोसिएशन में क्या करते हैं, इंटू हाफ करते हैं, इंटू 1/n करते हैं, और डिसोसिएशन में इंटू n करते हैं। तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, तो ये 2 में टूट गया, N2 हो गया। तो यहाँ पे 20 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 10 प्लस 80 प्लस 40/100। एक और है बेस्ट एग्जाम्पल जो कि एसिटिक एसिड का है। एसिटिक एसिड अंडरगो, ये तो अभी हम लोग पढ़े कि एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिनॉल था, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हेक्सीन, बेंजीन, टॉलिन, CCl4 और CH2, इस सब में ये एसोसिएशन दिखाता है। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है, HCOS, हाँ तो आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ना। तो ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये क्या दिखाएगा, एसोसिएशन शो करेगा, और क्वेश्चन में गिवन भी है। और यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल मिल के बनता है, तो N क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। I इक्वल्स टू एसोसिएशन का I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n। तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, और अल्फ़ा अगर 30% है, और फॉर्मूला में अगर यूज़ कर रहे हैं तो 30/100, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा लिखते हैं, अल्फ़ा परसेंट नहीं लिखते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 30/100, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.3, तो 0.3 इंटू 1 माइनस 1/n की जगह 2 लिख देंगे, तो सॉल्व कर देंगे। ओके, क्या फॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखते हैं। फॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू आई इंटू एम, या फिर आई इंटू स्मॉल एम, मतलब आई इंटू मोलैरिटी या फिर आई इंटू मोलैलिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा अगर 100% है तो आई इक्वल्स टू एन लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो 0.1 m NaCl है, तो आई हो गया NaCl, N2 हो गया इसका। और आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई इक्वल्स टू, अरे नहीं आई नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp इक्वल्स टू आई इंटू एम से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये 100% डिसोसिएट हुआ है। तो NaCl है, तो इसमें आई हो गया इसका 2, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है 100% डिसोसिएशन होता है, तो आई इक्वल्स टू n ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ग्लूकोज के लिए तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 हो गया, यूरिया भी 1 हो गया, BaCl2 3 हो गया, BaCl2 3 हो गया। तो जब इसे मल्टीप्लाई किए तो रिज़ल्ट ये आया 0.2, 0.5, 0.9, 0.2। ठीक है, अब जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होता है, और वेपर प्रेशर कम होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा कर दिए। तो सबसे ज़्यादा किसका कॉलिगेटिव 0.9, हाँ उससे कम 0.5, फिर ए और डी का तो बराबर है। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इंक्रीज़ हो रहा है तो आई भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, relative lowering in vapor pressure, when a non-volatile solute dissolve in volatile solvent, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखें तो फिर P0A माइनस PS इक्वल्स टू P0A इंटू काई बी। ठीक है, P0A माइनस PS इक्वल्स टू P0A इंटू काई बी, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू I इंटू काई बी, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ काई बी। ओके, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, मतलब Na ग्रेटर देन Nb, बहुत ज़्यादा है Na Nb से, तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू Nb अपॉन Na इक्वल्स टू M इंटू Ma अपॉन 1000। P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, ये डाइल्यूटेड के लिए। अगर हम चाहते हैं 100% आंसर करेक्ट है तो फिर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस देंगे, इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए इक्वल्स टू एम इंटू एम ए अपॉन 1000। बट ये जो है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये इज़ नॉट इक्वल्स टू काई बी के बराबर नहीं है, और ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसे कहा जाता है। बट 100% करेक्ट आंसर के लिए ये यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और ये नहीं दिया गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है या फिर ये वो, तो फिर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे एक्यूरेट मॉलिकुलर वेट आएगा। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी when non-volatile solute dissolve in volatile solvent, the boiling point of solution increases, known as elevation in boiling point. Delta TB is equals to TB minus T naught B. इंक्रीज हो जाता है बाद में, तो बाद में जो है उसे टी बी लिखे और टी नॉट बी है, तो पहले का है तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। मॉडिफाइड वर्जन क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम। के बी depends upon nature of solvent only, ebullioscopic constant or molar elevation constant और boiling point elevation constant। ऐसे कहा जाता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एन बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन के जी, क्योंकि मोलालिटी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है। kb depend upon nature of solvent only, delta tb is equals to I times of kb into m। delta tb is equals to I times of kb into m, तो unit of kb is equals to delta tb upon m, मतलब केल्विन kg पर मोल। ठीक है। kb फॉर H2O, kb फॉर वाटर 0.52 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में भी लिख सकते हैं kg पर मोल। ओके। और यहाँ पे वाटर की क्या सॉल्वेंट, और ये सिर्फ सॉल्वेंट के लिए। kb इक्वल्स टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर टू m अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और ये सब क्या है सॉल्वेंट का। मॉलिकुलर वेट भी m जो है ये सॉल्वेंट का। kb is equals to RTB square upon 1000 into L vaporization, 1 मोल ऑफ लिक्विड के लिए ले रहे हैं तो गैस, यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी, ये 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन। और फिर L वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 ग्राम लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए 1 ग्राम के लिए LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसलिए KB इक्वल्स टू RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। तो यहाँ पे मोल था ही नहीं तो इसलिए मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई ऊपर में नहीं की, बट यहाँ पे KB इक्वल्स टू RT नॉट B का स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ऑर्डर ऑफ KB एंड KF, KB CCl4, इससे कम CaCl3, इससे कम CH3COH, इससे कम C6H12, इससे कम C6H6, इससे कम CS2, इससे कम ईथर, इससे भी कम इथेनॉल, देन वाटर। KF कैम्फर CCl4, C6H12, C6H6, CHCl3, CH3COH, इससे कम CH2, इथेनॉल, वाटर, ईथर। ओके। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का ग्राफ, जिसमें से कि सॉल्वेंट का थोड़ा पीछे ही रह जाता है, इससे ज़्यादा आगे जाता है सॉल्यूशन का ज़्यादा जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, तो इसलिए TB जो है ये ज़्यादा हो गया T नॉट B से। ओके, इसलिए लिखते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट B। ओके। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अगर देखें तो इसमें 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ 1 ग्राम ऑफ वेपर। एल वेपोराइजेशन तब कहेंगे जब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम और समटाइम्स 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ वेपर। ओके। 1 मोल ऑफ लिक्विड तब कहेंगे जब 1 मोल ऑफ लिक्विड से
इक्विलिब्रियम पे 1 मोल ऑफ वेपर पे, तो यहाँ पे कहेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 मोल ऑफ वेपर, amount of heat required to convert 1 mole of liquid to 1 mole of vapor, delta H vaporization। इंथैल्पी टर्म ही डिफाइन होता है 1 मोल के लिए, ओके। तो डेल्टा H vaporization is equals to L vaporization into molecular weight of solvent, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। When a non-volatile solute is added in volatile solvent, its freezing point decreases, known as depression in freezing point. Delta TF is equals to T naught F minus TF, क्योंकि बाद में कम हो जाता है freezing point, इसलिए T naught F minus TF। डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के एफ इंटू एम। के एफ नोट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायो मतलब होता है ठंडा, इसलिए फ्रीजिंग के लिए यहाँ पे ये यूज़ किया गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये के एफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर, यूनिट ऑफ के एफ केल्विन केजी पर मोल। के एफ ऑफ वाटर, के एफ फॉर वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन केजी पर मोल। के एफ इज इक्वल्स टू आर टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू एम अपॉन डेल्टा एफ फ्यूजन इंटू 1000। के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन एल फ्यूजन इंटू 1000। के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वेपोराइजेशन, ठीक है। एफ latent heat of fusion, amount of heat required 1 gram or 1 mole of solid to convert into a liquid, ठीक है। if LF is in joule per mole then L fusion is equals to, यहाँ पे डेल्टा H फ्यूज़न मान लेंगे, ठीक है। जब जूल पर मोल में गिवन होगा तब इफ़ LF is in joule per gram then delta H fusion is equals to L fusion into MA। तो यहाँ पे जूल पर मोल, तब यहाँ पे L फ्यूज़न का हो गया जूल अपॉन ग्राम इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, तो ग्राम अपॉन मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, जूल अपॉन मोल। Which of the following has maximum freezing point? अगर इसमें सॉल्वेंट डालेंगे, मतलब सॉल्यूट डालेंगे, तब तो फ्रीजिंग पॉइंट घट ही जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा किसमें होगा। अगर सॉल्वेंट डाल दें तब तो बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट डालने पे तो कम हो जाता है। तो इसलिए प्योर वाटर जब मिक्स करेंगे तो फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू फ्रीजिंग पॉइंट इफ़ एक्वस CuSO4 इज़ मिक्सड विथ NH3? CuSO4 प्लस NH3 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, CuNH3 होल 4 और ब्रैकेट में SO4, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया, ओके। हाउ वेपर प्रेशर इज़ अफेक्टेड व्हेन Ki इज़ मिक्सड विथ HgI? Ki प्लस HgI ये आगे चल के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, K2HgI4, K2 ब्रैकेट में HgI4, तो ये नेसल्स रिएजेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो गया, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। कंपेयर इफ़ I फॉर 30% डिसोसिएटिंग HgCl2 एंड Hg2Cl2, यहाँ पे जो है ये दोनों जो है HgCl2 और Hg2Cl2, इन दोनों के लिए एक ही तरह का होता है, जैसे HgCl2 ये डिसोसिएट किया है Hg2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 आया, तो यहाँ पे I जब फाइंड आउट किए तो ये 30% डिसोसिएट कर रहा था, डिसोसिएट हुआ तो 30 × 3 प्लस रेस्ट था 70/100, 1.6 आया। और Hg2Cl2 में भी जब ये डिसोसिएट करेगा तो Hg2 + 2Cl माइनस, यहाँ पे भी इसका n इक्वल्स टू 3 ही रह जाता है, मतलब Hg जो है 2 मॉलिक्यूल एक साथ ही जुटा रह जाता है, यहाँ पे भी n इक्वल्स टू 3 हो गया, तो दोनों के लिए I सेम होगा,
ठीक है, अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, इट इज़ प्रोसेस ऑफ, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, it is the spontaneous flow of solvent molecules through semi permeable membrane from its high concentration towards its low concentration। ये अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है। और नहीं तो अगर इट्स नहीं लिखा हुआ रहता तो अगर ऐसे कंसनट्रेशन का टर्म देखा जाए तो केमिस्ट्री में ये सॉल्यूट के लिए टर्म डिफाइन है, ठीक है। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा तो हाई कंसनट्रेशन, सॉल्यूट कम तो लो कंसनट्रेशन, ओके। और यहाँ पे दोनों तरफ से फ्लो होता है, बट नेट मूवमेंट वो होता है हायर टू लोअर इन, ये हम बोले सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। नेट फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, नेट फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, नेट flow from dilute solution side to concentrated solution side, okay। Net flow from solvent molecules, net flow of solvent molecule from high vapor pressure side to low vapor pressure side, ठीक है। Net flow from concentration of solute, net flow from low concentration of solute to high concentration of solute, net flow from low osmotic pressure towards net flow from low osmotic pressure towards high osmotic pressure। ऑस्मोसिस में जब भी परसेंटेज गिवन हो तो उसे हम लेंगे वेट बाय वॉल्यूम ही मानेंगे, वेट बाय वॉल्यूम में ये गिवन है, ओके। एक्सो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस, ये तीन चीज़ पढ़ते हैं। एक्सो ऑस्मोसिस अगर बाहर का सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब आरबीसी से बाहर पानी आएगा, डेट्स नोन एज एक्सो ऑस्मोसिस, ओके। नो ऑस्मोसिस, या आरबीसी का ही रहता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसका 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इज प्रेजेंट रहता है उसमें, या फिर ये कह सकते हैं 0.16 m मोलैरिटी इतना प्रेजेंट रहता है आरबीसी के अंदर, और बाहर का कंसनट्रेशन भी 0.9% है, तो ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहा था, यहाँ पे नो ऑस्मोसिस, ओके। फिर एंडो ऑस्मोसिस, या आरबीसी है, आरबीसी इसके बाहर का सॉल्यूशन लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, तो ये क्या हो गया, स्वेल अप हो गया, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना रहा था, तो पानी बाहर से अंदर की ओर चला गया, आरबीसी के अंदर चला गया पानी, डेट्स व्हाई ये स्वेल अप हो गया, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर, the minimum pressure applied on solvent molecules to prevent osmosis is known as osmotic pressure। The minimum pressure applied on the solvent molecules to prevent osmosis known as osmotic pressure, and pi is directly proportional to C, pi is directly proportional to T, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू CRT, और मॉडिफाइड क्या है, पाई इज इक्वल्स टू ICRT। और एक और फॉर्मूला है, पाई इक्वल्स टू रो GH, H इन सेंटीमीटर, रो इन ग्राम पर cm3, ओके। M इक्वल्स टू NB अपॉन सॉल्यूशन, M क्या है, मोलरिटी, हाँ ठीक है। if different solutes are present in solution, pi is equals to I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution in liter into RT। pi is equals to I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution in liter into RT। Yeah, for mixture of two solution, pi 1 V1 plus pi 2 V2 is equals to pi 3 V3। For mixture of two solution, pi 1 V1 plus pi 2 V2 is equals to pi 3 V3, V1 plus V2, ये क्या है, pi क्या है, resultant solution, okay। If different solutes are present in solution, then I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution in liter। For mixture of two solution, pi 1 V1 plus pi 2 V2 is equals to pi 3 V3, ठीक है। Isotonic solutions, these solutions having same osmotic pressure at same temperature, those solution having same osmotic pressure at same temperature, तो यहाँ पे pi 1 is equals to pi 2 I1 C1 RT1 is equals to I2 C2 RT, at same temperature पर the temperature cancel, R cancel, I1 C1 is equals to I2 C2। Osmosis, movement of only solvent molecules, but diffusion में both solute and solvent move, okay।
10% urea solution is isotonic with 5% non-electrolyte solution. Find molecular mass of non-electrolyte. 10% urea I1C1, ये isotonic with isotonic है, I1C1 इज टू I2C2. ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. और ये हमेशा यहाँ ध्यान रखना, ये परसेंट में जो रहता है 10%, मतलब 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके. Reverse osmosis. In case if we are applying more pressure than osmotic pressure, then solvent particles move from higher concentration to lower concentration. हाँ, और केमिस्ट्री में अभी हम बोले थे, केमिस्ट्री में कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. ओके, जैसे सॉल्ट वाटर से सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहा है, वाटर की तरफ. तो मतलब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. एग्जाम्पल, desalination of sea water, saline water converted into soft water by reverse osmosis. डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है. ठीक है, ये ग्राफ है ऐसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है डिक्रीज. ये सबसे पहले यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, जैसे जैसे इसमें डालते गए तो इसका बढ़ते गया टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ते गया, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता गया. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीसी का ये जो आगे, फिर इससे कम. ठीक है, सबसे कम हो गया प्योर वाले का. ओके. फिर डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ एम बी सी का उससे कम हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के. डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के, तो एम का भी यही ऑर्डर. ठीक है. फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी बी, डिफरेंस भी यही, सबसे ज़्यादा सी का, फिर बी, फिर ए. ग्राफ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो फिर डेल्टा टी एफ देखें तो फिर टी नॉट एफ माइनस टी एफ. ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ देखें, तो जब इसमें ऐड करते हैं सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो वो और कम हो जाता है, तो मतलब ये माइनस में चला जाता है. ठीक है, तो जब इसका अगर क्वेश्चन आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी एफ चेंज अगर देखें तो फिर चेंज तो सबसे ज़्यादा सी, फिर बी, फिर ए. ठीक है, जो सबसे दूर था उससे कम. लेकिन डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि टी ए का सबसे उससे कम, फिर टी बी का उससे कम, टी सी का सबसे कम, तो ए बी सी, ये उल्टा हो गया. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी, तो ये तो डेल्टा टी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डेल्टा टी बी का जो ऑर्डर वो इसका. ओके. अब एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ. सॉल्ट इज एडेड टू वाटर यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ कार सो डैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस टू सब जीरो वेदर इथाइल ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लाइकोल is also used as anti-freezing agent. CH2OH. Salt is added to water used in radiator of car so that freezing point of water decreases to sub-zero whether ethylene glycol or glycol is also used as anti-freeze agent. ठीक है. रास्ट मेथड because of its higher kf value of camphor, it is used in determination of रास्ट मेथड क्या है, because of its higher kf value of camphor, it is used in determination of delta TB and delta TF of organic solvent like benzene, naphthalene, etc. Although all colligative property can be used for determining molar mass, but osmotic pressure is the best method for determining molar mass of polymer, because delta TB and delta TF involves either very high or low temperature. Delta TB and delta TF involves either very high or low temperature, which may cause denaturation of protein. But osmotic pressure experiment can be done at room temperature. Okay. Osmotic pressure involves molarity, which is most common than molality. Due to
Due to larger size of polymers, they are unable to pass through semi-permeable membrane to also better result are obtained. तो semi-permeable में ये दो तरह का artificial और नेचुरल क्या है, गॉट ब्लैडर, पिग ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, गॉट ब्लैडर, पिग ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, और आर्टिफिशियल कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2 FeCN होल 6, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल 2, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2, सिलोफेन और cellulose acetate. Okay, and now this chapter is now completed. Thank you.